Hello everyone. I hope I'm audible as well as visible. I cannot communicate right now because this is not live. Anyway, after getting so many queries about the exam pattern and the book list to be, consulted, strategy, etc. So there were number and hundreds of messages. So obviously, it was not possible for me to reply everyone individually. So I decided to come up with a video series on whatever you are asking me. So I'll be making video on the common issues that the aspirants are facing right now. Okay. So everybody was asking me about the book list. So I've made a book list for pre, mains, as well as for anthro optional. So in this video, I'll be discussing about the prelims book list, and then in the next video, I'll come to the this main syllabus and the book list, and then in the third video, I'll come directly to the anthropology. Okay, like everybody knows, this is a 3-stage exam, be it UPSC or GKPSC, that is IAS or GKAS. So first you have to pass prelims, then mains, and then interview. Okay, this you know. So prelims has GS plus CSAT. GS में you have 100 questions, ठीक है, and all the subjects that I'll discuss in a while. तो you have to prepare all those. उसके बाद जो CSAT है, CSAT आपको अभी CSAT is becoming a game changer. पहले easy आता था but अभी थोड़ा tough हो गया है. So you have to take care of this. इसका आपको स्पेशली ख्याल रखना है CSAT का, ठीक है. So पहले तो आप GS पढ़ोगे ऑब्वियसली. जब आप थोड़ा GS खत्म करोगे, लाइक 2-4 सब्जेक्ट्स आपने कर लिए, उसके बाद आपको देखना है आर यू कंफर्टेबल विद द CSAT. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द CSAT देन प्लीज फोकस ऑन दिस, ठीक है. Because there is no fun कि आप GS पढ़े जा रहे हो and then you don't know anything about CSAT. Engineers को तो आता ही होगा but still they need to practice because different types के questions होते हैं, comprehension होता है, aptitude होता है, reasoning होती है, ठीक है, number series etc. maths based questions होते हैं, probability and all that जो हम पढ़ते हैं स्कूल में या फिर 11th-12th में, ठीक है. तो that you have to focus on. GS का तो I'll tell in detail. CSAT में आप if you are not good in CSAT, do one thing. आप एक book थी that I had referred to, that is with the name 30 Days Maths Wonder. ठीक है. So last time I couldn't qualify UPSC prelims because of CSAT only. So उसके बाद मैंने ये book पढ़ी, but then I didn't appear in UPSC then. उसके बाद मैंने KSC दिया. तो but this book helped me a lot. इसमें different chapters दिए हैं. उस chapter पे आपको like एक स्टेप टू स्टेप गाइड दिया है कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. एंड जितने भी पैटर्न के क्वेश्चंस एक चैप्टर में पूछे जाते हैं उन सबको डिवाइड किया है बहुत ब्यूटीफुली. एंड देन देयर आर सम फॉर्मूलाज आल्सो जो आपको कहीं कहीं पे यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है. सो द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन, एग्जांपल्स आर गिवन, फॉर्मूले आर गिवन, एवरीथिंग इज गिवन. यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस द बुक, ठीक है, इफ योर CSAT इज वीक. उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग रहता है. आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई भी जो है यूट्यूब पे वीडियो देखिए, ठीक है. उसको बेटर रहेगा आप प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करें, बिकॉज कोई ऐसे बुक नहीं आती है जो उस तरह से कॉम्प्रिहेंशन पूछे जिस तरह से UPSC या GKPSC पूछती है, ठीक है. सो उसके लिए बेटर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. Fine. So for maths portion, you will follow this book, or if you are following some other book, तो कोई ऐसा नहीं है hard and fast rule. तो मैं इस वीडियो में जो भी बोल रही हूँ that I'm saying whatever I have done, ठीक है. तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप फॉलो कीजिए, या अगर आप ऑलरेडी कोई फॉलो कर रहे हैं तो यू कैन कंटिन्यू दैट. फाइन. सो कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड सम पीपल हैव आल्सो discussed about the strategy or about the the method which they are following and which is working, ठीक है. Because comprehension पे to arrive at the right option it is a bit difficult, है ना. It's not what it appears to be. आंसर कुछ और ही होता है. तो वो आप कुछ YouTube वीडियोस देख लें, हाउ टू सॉल्व UPSC कॉम्प्रिहेंशन, CSAT कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है.
देन देयर इज मेंस। एक जनरल इंग्लिश का आता है 300 मार्क्स, इसको रहने दीजिए, ये तो हो ही जाएगा, लाइक फंक्शनल बेसिक इंग्लिश सबको आती है। देन यू हैव जीएस। जीएस में 4 पेपर्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये मैं अगले वाले वीडियो में डिस्कस करूंगी, पेपर्स और सिलेबस एंड देन बुक लिस्ट। एंड देन देयर इज ऐसे। ऐसे काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लाइक हाउ टू स्टार्ट एन ऐसे, हाउ टू कंक्लूड एन ऐसे, आप एनेक्डोट्स का यूज कैसे कर सकते हो, आप पोएम्स का यूज कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू यूज द करंट अफेयर्स टू स्टार्ट द ऐसे, ठीक है। आई विल ट्राई टू कम अप विद अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। देन देयर इज ऑप्शनल, तो मैं अपने ऑप्शनल की बात करूंगी, लाइक एंथ्रोपोलॉजी, या अगर आप चाहते हो आप किसी और ऑप्शनल के बारे में, तो आई सी मेरा कोई बैचमेट हो तो वी कैन आस्क फॉर हेल्प इफ यू वांट, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। देन लास्ट वाला जो आपका है इंटरव्यू है, इसके लिए एक सेपरेट, और अभी तो इसका टाइम नहीं है, आप प्री दीजिए अभी, फिर मेंस के बाद वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। अभी इसको रहने दीजिए। वंस यू आर डन विद द प्रीलिम्स एंड मेंस, आप में आपकी पर्सनालिटी में ऑलरेडी चेंजेस आ गई होंगी, और वो सारी चेंजेस आपको इंटरव्यू में यूज होंगी, बिकॉज दिस इज जस्ट द पर्सनालिटी टेस्ट, दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज। नॉलेज प्री और मेंस में वो देख चुके हैं आपकी, अभी जो वो देखेंगे दैट इज द पर्सनालिटी, ठीक है। या आपका कितना पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है आफ्टर रीडिंग द एंटायर सिलेबस एंड फॉलोइंग द करंट अफेयर्स, आपका जो भी द वे यू थिंक, द वे यू परसीव थिंग्स, वो चेंज हो गया होगा बाय दैट टाइम, ठीक है। तो दैट वी विल डिस्कस एट द एंड। So right now in this video, we will discuss about the prelims book list. तो यहाँ पे ये I want to highlight that these are the books that I have followed. तो मैं वही बोलूंगी जो मैंने किया है. There might be n number of books, n number of ways, n number of suggestions, recommendations. ठीक है. तो उनके साथ I have to do nothing. मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूंगी and then it's up to you. If it suits you, आप इसको करिए फॉलो. अगर नहीं सूट करता है तो आप अपना ही फॉलो, या किसी और टॉपर को आपने सुना हो देखा हो तो आप उनका फॉलो कीजिए, ठीक है। जो कंफर्टेबल होगा वो इसको फॉलो कर सकता है, ओके। अभी वी हैव एंशिएंट प्लस मिडिवल, पहले इस पे मैंने उतना ज्यादा फोकस, ठीक है। आई स्टार्टेड विद आर एस शर्मा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने एंशिएंट की बुक पढ़ी वो मोटी थी, ठीक है, एंड इट वाज, पहले कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े एंड उसके बाद ये काफी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट हो गया, तो फिर मुझे लगा कि आई शुड गो फॉर समथिंग एल्स, ठीक है। एंड देन मैंने तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ी, तो वो ठीक थी, दैट वाज बेटर के, मतलब आप, मतलब एंशिएंट की मोटी थी, फिर आपको मिडिवल अलग से पढ़ना था। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एनसीईआरटी पढ़ी तमिलनाडु की, लाइक आफ्टर बहुत कुछ करके, इधर उधर बुक्स पता नहीं क्या क्या पढ़ के, फाइनली मैंने फिर ये फिक्स करा, आईएएस नेटवर्क के नोट्स आपको उसमें एंशिएंट मिडिवल दोनों इतनी सी बुक लेट में आती है, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप इतना भी करते हो तो दिस वुड सफाइस, फाइन। सो मैंने फिर इतना 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 भटक भटक के देन फाइनली मैंने ये फिक्स कर दिया, ठीक है। अब चाहो तो आप इनको देख सकते हो, काफी क्रिस्प है, टू द पॉइंट है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, तो काम हो जाता है इससे। देन टॉकिंग अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न में आई स्टार्टेड विद, मैंने एक्चुअली, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, लेट मी ऐड, आई सबसे पहले आई फॉलोड प्रतीक नायक सर्स वीडियो, प्रतीक नायक, ठीक है। सो ही वाज टीचिंग ऑन द मृणाल सर्स चैनल, आप सब जानते होंगे मृणाल सर को, तो उनकी चैनल पे प्रतीक नायक सर वाज टीचिंग मॉडर्न हिस्ट्री, तो आई स्टार्टेड विद दैट, ठीक है। उस टाइम पे आई डिडंट नो अबाउट मच अबाउट दिस एग्जाम पैटर्न, तो मैंने पहले इनके वीडियोस देख लिए, उसके बाद आई रेड स्पेक्ट्रम डायरेक्टली, ठीक है। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चली कि कुछ एनसीईआरटीज है नो योर पास करके, फिर मैंने वो पढ़ी। उसके बाद मुझे पता चली थीम्स भी पढ़नी है जो नई आई है, थीम 1 2 एंड 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हो तो ये और ये जो है ना, ये दो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Every now and then questions are asked by UPSC from these sources. Trust me, every year. और स्पेक्ट्रम से आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि लाइक क्रिप्स मिशन पे आता रहता है, क्विट इंडिया पे आता रहता है, क्रिप्स मिशन पे तो एवरी टाइम द क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड, ठीक है। क्विट इंडिया पे आएगा, दांडी मार्च एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, या फिर स्टार्टिंग फेज ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद
मैंने फिर IAS नेटवर्क के नोट्स भी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लिए। मुझे वो अच्छा लगा, वो स्पेक्ट्रम का सॉर्ट ऑफ एक क्रक्स था जो मुझे क्विकली स्पेक्ट्रम का रिवीजन हो जाता था IAS नेटवर्क से। बट अभी रिसेंटली नितिन सांगवान सर ने एक ही इज एन IAS, उन्होंने एक बुक प्रिपेयर की है ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने वो पढ़ी नहीं बिकॉज मेरा सिलेक्शन के बाद ये बुक आई, तो मैंने बस इसको स्क्रॉल किया जो अवेलेबल था PDF। तो आप देख लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो काफी सारे अच्छे रिव्यूज आए हैं इस बुक के कि देयर आर सो मेनी फ्लो चार्ट्स आर देयर, प्रीवियस क्वेश्चंस आर देयर, सम टॉपिक्स आर डिस्कस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, आई नो हिस्ट्री में बहुत पढ़ना पड़ता है, लाइक इट्स लाइक हिस्ट्री का सिलेबस एक तरफ और बाकी सब्जेक्ट्स एक तरफ। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। ओके, आफ्टर दिस यू हैव आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में उतना ज्यादा नहीं करना है, फाइन आर्ट्स आप पढ़ेंगे सारी, पूरी आपको पढ़नी है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। नितिन सांगवान नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है वो आप सिलेक्टिवली पढ़िए। कुछ चैप्टर्स है जो मैंने पढ़े थे, जैसे पेंटिंग्स थी, आर्किटेक्चर था, एंड देन इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक टेम्पल, अच्छा टेम्पल आर्किटेक्चर मैंने बोला, पेंटिंग्स भी बोला। उसके बाद कॉइनेज है, थोड़ा बहुत उसका पूछ लेते हैं। एंड देन कुछ है चैप्टर्स, ठीक है, वो आप कर लीजिए, जैसे IBC हो गया। तो लाइक इफ यू वांट तो वो मैं अलग से बता दूंगी इससे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आप छोड़ सकते हो सेफली। ठीक है, ये कैसे पता चलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको 5-10 साल का जो है पेपर्स का एनालिसिस करना पड़ता है, लाइक जरूरी करना है इफ यू वांट टू स्टडी इफेक्टिवली। ठीक है, वरना फिर पढ़ते जाओ सारा तो फिर पता नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है और व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड, है ना। So therefore, by analyzing previous year questions, you can arrive at directly what to read and what to skip. ठीक है, so in this you will read very selectively. उसके बाद पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत would suffice, like लक्ष्मीकांत आपको अच्छे से रटनी है। जस्ट रीड इट 10, 20, 30 टाइम, जितना हो सके उतना पढ़ो। ठीक है, यू शुड बी नोइंग लक्ष्मीकांत पे कहाँ पे क्या लिखा है। ओके, एंड देन देयर आर 2 NCERTs, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट NCERTs। अगर आपका लाइक पॉलिटी समझ आ रहा है देन फाइन, अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़िए, उसके बाद आप पॉलिटिकल थियरी पढ़िए। ये जो है, ये जो 2 NCERTs है, मैंने काफी टाइम पहले पढ़ी थी। एक बार पढ़ के फिर मुझे लगा आई कैन हैंडल पॉलिटी, एंड देन मैंने आई स्टार्टेड विद द लक्ष्मीकांत। सबसे पहले मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ी, फिर मुझे ऐसा ऐसा पता चली कि ऐसे कुछ 2 NCERTs है जो पढ़नी है। फिर मैंने ये पढ़ी एक बार वाज फाइन फॉर मी, तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं कर सकती हूँ इसको। ठीक है, तो फिर मैं बार बार लक्ष्मीकांत ही पढ़ती रही ऑलवेज। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव इकोनॉमी। ठीक है, व्हेन आई स्टार्टेड आई वॉच्ड डायरेक्टली द वीडियोज ऑफ मृणाल सर। तब ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद दी अनअकैडमी, जब मैंने उनको फॉलो किया था, सीधा यूट्यूब पे उनके वीडियोस थे। वो पुराने थे बट जो स्टैटिक है आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स, वो तो वही थे। ठीक है, वो मैंने वहां से देखे। उसके बाद एक्चुअली उनका जो इशू है मृणाल सर का जो मटेरियल आता है दैट इज कुछ 1000 और मोर पेजेस, तो दैट इज नॉट मैनेजेबल बिफोर एग्जाम, या अब उसको रिवाइज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई वुड recommend, अगर आपको इफ मृणाल सर्स वीडियोस आर लाइक एक्सेसिबल टू यू, जहां से भी पायरेटेड ही होंगे बिकॉज अन अकेडमी पे आप पढ़ाते हैं वो, तो आप एक काम कीजिए, आप नोट्स बनाइए, वो जो भी बोल रहे थे वो आप लिखिए। ठीक है, सो दैट आपको अपने नोट्स रहें, आप फिर उनके वो जो 1000 पता नहीं कितने पेजेस है वो उस पर डिपेंड ना करें। ठीक है, आई वुड सजेस्ट दिस। उसके बाद अगर आप ये देखते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं देखना चाहते हो, जैसे मुझे पसंद नहीं था वीडियोस देखना, मैंने वीडियोस देखे हैं शायद पहले साल में जब मैंने प्रिपेयर स्टार्ट किया था, बहुत पुरानी बात है, 17-18 की बात है। ठीक है, 2017-18, तो तब मैंने पहले देखे, बस एक बार मैंने देखा, मुझे अंदाजा लग गया कि उन दिनों व्हेन यू स्टार्ट यू आर लाइक वेरी फ्रेश एंड यू रिमेम्बर थिंग्स। ठीक है, एंड उसके बाद आई गॉट टू नो, देन आई वेंट टू हमदर्द स्टडी सर्कल, वहां पे आई गॉट टू नो अबाउट विवेक सिंह। विवेक सिंह वॉज अ वेरी गुड बुक, वेरी ल्यूसिड, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। हर चीज को इतना अच्छे से डिटेल में समझाया है, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू फॉलो द बुक
अच्छे से फोकस करके, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है। अभी रिसेंटली आई रेड नितिन सिंघानिया ऑल्सो। ठीक है। आई हैड टू टीच सम एस्पायरेंट्स फॉर प्रीलिम्स यूपीएससी, तो मैंने नितिन सिंघानिया जल्दी जल्दी पढ़ी, बिकॉज उसमें क्या था, प्री ओरिएंटेड वो सही बुक है, लाइक जल्दी जल्दी में आपको प्री के लिए जो नॉलेज चाहिए वो उसमें लिखी गई है। तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो दिस कैन बी स्किप, बट देखने में कुछ नहीं जाता, एक बार देख लेना कैसी बुक है। ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दो आप कर लीजिए। ठीक है। इन दोनों में से अगर आप एक ही करना चाहो तो ठीक है, इधर गो फॉर मृणाल सर वीडियो और गो फॉर विवेक सिंह, इट्स ओके। ठीक। दिस इज नॉट कंपल्सरी। अगर आप प्री के लिए क्विकली कुछ देखना चाहते हो तब आप इसको पढ़िए। ठीक है। Then there is this economic survey plus budget. This is indispensable. अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो ये दो आपको पता होनी चाहिए। Okay. So this I'm teaching right now. आज I taught its first lecture, तो वो भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। If you want, you can watch that. ठीक है। बजट तो आपको कहीं से भी आपको मिल जाएगा, इतना कुछ खास नहीं होता है उसमें। थोड़ा हाइलाइट्स देख लेना, क्या क्या गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ पे क्या क्या लाइक बजट कहाँ पे बढ़ाया है, कहाँ पे कम किया है। ठीक है। व्हाट इज द ट्रेंड, या कोई नई चीज आई हो। ठीक है। वो देख लेना। फाइन। उसके बाद यू हैव एनवायरनमेंट। व्हेन आई स्टार्टेड आई रेड शंकर आईएएस डायरेक्टली। ठीक है। तो शंकर आईएएस वाज फाइन, बट लाइक कि थोड़ा उसमें भी आपको यू हैव टू रीड वेरी सिलेक्टिवली। पूरी नहीं पढ़नी है, कवर टू कवर नहीं पढ़नी है। ठीक है। आप उसको भी सिलेक्टिवली पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके। और इसका पीएमएफ आईएएस भी आता है, अब वो भी पढ़ सकते हो। दोनों में से कोई भी पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब, एंड डोंट एक्सपेक्ट कि आपने ये पढ़ा तो आप क्वेश्चन इसी से आएगा, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना। इन्वायरमेंट में दे कैन आस्क एनी डैम थिंग, स्पेशली वो करंट से पूछते हैं। तो जो पीटी 365 आता है प्रीलिम्स से पहले, अच्छे से करिए। हर सब्जेक्ट का पूरा वो 365 आपको सब्जेक्ट वाइज आएगा, जैसे कि पॉलिटी अलग से आएगा, सोशल इश्यूज अलग से आएगा, इन्वायरमेंट अलग से आएगा, साइंस एंड टेक एंड ऑल दैट। ठीक है। वो आपको अच्छे से पढ़नी है, बार बार 2 3 4 5 बार एग्जाम में जाने से पहले। ओके। देन यू विल नॉट मिस एनी क्वेश्चन। उसके बाद ज्योग्राफी, अगेन आई स्टार्टेड विद मृणाल सर का वीडियो, लाइक उनकी चैनल पे देयर वाज राजधानी मैम, पहले बहुत अच्छे वीडियोस थे। ठीक है। उसके बाद जीसी लियोंग मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी, ये भी मैंने एनसीईआरटी में नहीं मिली, वो मैंने जीसी लियोंग से पढ़ ली। बाकी मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी है, खरीदी भी नहीं है। मुझे जो टॉपिक चाहिए होता था मैं किसी फ्रेंड से बुक लेके पढ़ती थी, क्योंकि मुझे लगा खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके। उसके बाद साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक में आप वाजीराम के नोट्स मैंने पढ़े थे, क्लास नोट्स, एंड ऑफ कोर्स पीटी 365। ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे। अगर आप ये स्किप भी करना चाहते हो, लाइक इफ यू डोंट वांट टू गेट दैट होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड टेक, तो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए साइंस एंड टेक में, इफ इट्स नॉट ऑफ इंटरेस्ट टू यू, तो आप सीधा पीटी 365 पढ़िए, तो आपका प्री तो आराम से निकल जाएगा। बट अगर आप चाहते हो समझना कि ऑल द लाइक जितने भी मेजर मेजर कंपोनेंट्स आते हैं साइंस एंड टेक में, लाइक बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है। ठीक है। उसके बाद आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे होता है, वो जितनी भी चीजें हैं, या बायोलॉजी पोर्शन है, तो आप आराम से वाजीराम के क्लास नोट्स पढ़िए। बट लाइक यू कैन स्किप इट ऑल्सो, बट इफ यू वांट यू कैन। ठीक है। सो दीज आर ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स जो आपको पढ़ने हैं, एंड दीज आर ऑल दी important sources plus CSAT I told you, read that 30 days maths wonder plus the comprehension from any YouTube channel। ठीक है। वो आप कर लेना। उसके बाद आपको डेली हिंदू पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है। दिस यू कैन नॉट स्किप, बिकॉज चाहे आप जेकेपीएससी दे रहे हो या आप यूपीएससी दे रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गिवन द कॉम्पिटिशन नाउअडेज। यू कैन नॉट स्किप हिंदू। सेकेंडली, आपको मंथली विजन भी पढ़ना है। ओके। सो ऐसा नहीं है कि यू आर लाइक पर डे आप हिंदू पढ़ रहे हो तो बस दैट इज एनफ। नो, हिंदू के साथ साथ जैसे ही मंथ खत्म होता है तो विजन आईएएस की साइट पे आप जाओगे, मैगजीन डाउनलोड करोगे,
वो आप रिवाइज करने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो पीटी 365 विजन का आता है या मेंस 365 आता है, वो भी आपको पढ़ना ही होगा। सो प्रीलिम से पहले पीटी 365 आएगा और मेन से पहले मेंस 365 आएगा, तो दोनों आप पढ़ोगे, ठीक है। तो प्री के लिए इतना काफी है, लाइक इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज इनफ। सो टुमारो आई टॉक अबाउट मेंस, ठीक है, टुमारो और आई सी व्हेन। So this is it for prelims. Okay. इससे ज़्यादा plus आप if you want to appear in UPSC, तो आप please last 10 years के जो है पेपर्स को एनालाइज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। एनालाइज इन द सेंस कि यू डोंट ओनली हैव टू फाइंड द राइट आंसर, बट यू हैव टू रीड ऑल द 4 ऑप्शंस इन एवरी क्वेश्चन। तो चारों ऑप्शन जो भी यूपीएससी सेट करती है हर पेपर में, वो आप पढ़ेंगे उस ऑप्शन के बारे में, बिकॉज यूपीएससी उन्हीं ऑप्शंस को यूज करके फिर क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। तो चलो 10 नहीं तो आप 5 से 8 साल का तो कर चलिए, मिनिमम 5 साल का आप कीजिएगा अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, बट यूजुअली लोग 10 साल के करते हैं एंड दे क्वालिफाई। ओके, दिस यू कैन डू, रेस्ट आई टोल्ड यू व्हाट टू फॉलो। ओके, बाकी तो now the strategy people are like how to what to read and how to read। अब how to read is like अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर, मान लीजिए आपको अभी कुछ नहीं पता, तो आप पहले एक सब्जेक्ट लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने पॉलिटी चूज किया, तो ठीक है, आप पहले पॉलिटी पढ़िए, थोड़ा बहुत गेट कंफर्टेबल विद दिस सब्जेक्ट, देन कम टू अनदर सब्जेक्ट इकोनॉमी। या अगर आप ज्यादा सॉर्ट ऑफ एंथुजियास्टिक या इनर्जेटिक है, देन पॉलिटी इकोनॉमी साथ में लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत जीएस पढ़ लोगे ना, लाइक पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। अगर आपने ये 4 ही कर लिए, प्लस फिर आपको देखना है आपका सी सेट कैसा है। अब कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कीजिए, जैसे 2020 का कीजिए, 20 का कीजिए, 21 का कीजिए, देन सी व्हाट इज योर लेवल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द पेपर। देन यू हैव टू सी वेदर यू हैव टू डू सी सेट रिगरसली, या फिर आपको थोड़ा पेपर्स प्रीवियस ईयर कर लोगे एंड इट विल बी फाइन फॉर यू। दैट यू हैव टू सी, दैट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद यू विल फोकस ऑन ऑप्शनल। ऑप्शनल, अब पहले आप थोड़ा जीएस देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए ऑप्शनल में क्या करना है, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप आप चलिए, एक साथ सारा करोगे तो हौच पौच हो जाएगा, और जो भी फ्रेशर होता है उसके लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू देन मेंटेन। तो उसके बाद आप ऑप्शनल पे आइए, लेकिन ऑप्शनल पे आइए मतलब आपको पहले ही चूज किया होना चाहिए, ठीक है। उसका कुछ कुछ आप मटेरियल भी होना चाहिए आपके पास। तो अब आप जब जब आप इतना कर लोगे ना, आप में कुछ कॉन्फिडेंस आएगी, ठीक है, तब जाके आप ऑप्शनल पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे आई विल टॉक अबाउट एंथ्रो इन नेक्स्ट वीडियोस। तो मैं एंथ्रो का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, लाइक हाउ आई स्टार्टेड, फिर मैंने क्या क्या पढ़ा एंड ऑल दैट। तो आई विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। फिलहाल के लिए इफ यू आर अ बिगिनर और आपने शुरू किया भी है, देन यू कैन फॉलो दीज बुक्स इफ यू वांट। तो एंड यू कैन सब्जेक्ट, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अगर आपने थोड़ा टाइम पढ़ा है, देन एटलीस्ट गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स पर डे प्लस करंट अफेयर्स। और अगर आपको सी सैट भी करना है तो उसको भी इंक्लूड कीजिए, थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए सब्जेक्ट्स को, सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ रहे हो, देन आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी। ओके, सो दिस इज इट आई थिंक इन दिस वीडियो। तो बाकी tomorrow I'll take, I don't know tomorrow, any other day, I'll take the mains book list, okay, and the sources जो भी होंगे। उसके बाद I'll come to the optional। I know अभी प्री है, तो जो भी प्री के लिए पढ़ रहे हैं, सो प्लीज अच्छे से पढ़िए, और जो भी करंट अफेयर्स को अच्छे से कीजिए। बट करंट अफेयर से पहले यू शुड बी वेरी थॉरो विद द स्टैटिक बुक्स। ये जो बुक्स मैंने बोली है, इनका जो बेसिक्स है, जो भी स्टैटिक पोर्शन है, जो चेंज नहीं होता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए, तभी जाके यू कैन शिफ्ट टू द दिस, तभी जाके यू कैन गो टू द एग्जाम, ठीक है। और प्री अटेम्प्ट करने से पहले यू शुड बी नोइंग द मेंस सिलेबस। आपने पढ़ा होना चाहिए, आपके पास नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, ऑप्शनल आपने 2-3 बार पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्री दे रहे हो, आपने प्री दिया एंड देन यू विल बी लाइक अब मैं मेंस पढ़ूंगा या पढ़ूंगी आफ्टर प्री, आफ्टर क्लियरिंग प्री, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू ऑलरेडी बी वेरी मच
दिस थॉरो विद द मेंस, ठीक है। आपने पढ़ा होना चाहिए, आपके पास नोट्स होनी चाहिए, आपने ऐसे राइटिंग की होनी चाहिए, आपने आंसर राइटिंग की होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके आप प्री दीजिए, तब जाके आपका प्री क्लियर होगा, तब जाके आप मेंस क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बहुत रेयरली कोई हो सकता है, बहुत ही रेयर पर्सन जिसका प्री के बाद उसने मेंस पढ़ा हो और उसका हो गया हो। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन देम, आप वो देखिए जो एक जो एक्चुअली में यू हैव टू डू, ठीक है। एक्सेप्शंस को आप मत देखिए, कुछ हो सकते हैं 1 या 2%, बट दिस इज द रूल, ठीक है। प्रिपेयर योर मेंस बिफोर अपेयरिंग इन द प्रीलिम्स, ठीक है। इंटरव्यू तो फिर बाद में हो जाता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। उसके लिए 15 दिन भी काफी होते हैं, ठीक है। वो यही जितना भी आपका क्यूमुलेटिव नॉलेज होता है, तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट दैट। ओके, सो we will discuss that in a separate video. So this is it for today, and I hope I have addressed some of your queries. अगर कुछ और भी होगा तो आप या तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या आप जहाँ पे मुझे मैसेज करते हो, जैसे टेलीग्राम, सॉरी ट्विटर हो गया या इंस्टाग्राम, तो दोनों में कहीं भी जो मुझे फिर कॉमन पॉइंट्स लगेंगे उन पे आई विल कम अप विद द अदर वीडियो, बिकॉज आई कैन नॉट अलग अलग से आई कैन नॉट रिप्लाई, है ना। फिर आई हैव रिप्लाई टू ऑलमोस्ट एवरीवन, बट स्टिल देयर आर सो मेनी पेंडिंग मैसेजेस, इतना नहीं पॉसिबल हो पाता, इसीलिए आई थॉट कि मैं एक ही मैं वीडियो बना लूं सो दैट सब देख लें एक साथ। तो दिस इज इट फ्रॉम मी। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, यू कैन कमेंट below, और कहीं पे भी ट्विटर, wherever you want, तो I'll address that. I'll try my best to help. Okay, so all the best, and I'll see you in the next video.